चलो, all of you take some number. अंदर यार 27 यार last 29. Now take 29. Look at 29 sum. Right number. Yeah, very well. चलो, all of you take sum number 27 क्या था ना 29 ले लो. See, in the last class we okay 29th. What was the same month extracting? Same month में क्या था? We had same month का cash book and same month का passbook. So when the data is of same month, you try to mark which items? Different items. बराबर है? When the data is of same month, you try to mark different items. But when the data is of different months, you try to mark same items. बराबर है? Is that right? Now, this data is of same month or different month. So which items are we going to mark? Same item. बराबर है? Why are we marking same items? Because we are actually making DRS for which month? December or Jan? December. December का कैश बुक तो दिया है, लेकिन दिसंबर का पासबुक नहीं दिया. मिला? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? दिसंबर के कैश बुक के मदद से एंड जैन के पासबुक के मदद से दिसंबर का बीआरएस बना रहे. बराबर है? वी आर मेकिंग अ बीआरएस फॉर विच मंथ? दिसंबर, विद द हेल्प ऑफ जैन का पासबुक. राइट? Let's compare the balance. What balances you will compare? Closing of cash book with what? Sumit. Closing of cash book with what? Opening of passbook. What is the opening of passbook? 345. And what is the closing of cash book? 360. So we have to move from 360 to 345. Because Jan का opening is nothing but December का closing. समझा? तो 360 से शुरू करेंगे तो 345 मिलना चाहिए. And which items shall we mark? Same item. Because what is the logic? Different month में सब कुछ different ही होना चाहिए. कुछ same हुआ मतलब लोचा है. So let's mark and find out. बाबुल. तो बाबुल में इधर दिख रहा है बाय बाबुल. Right? Sales नहीं है. रामनारायण है. मार्क रामनारायण. कैश बुक में ही मार्किंग होगा. इधर एक ही टी है. कैश बुक में ही मार्क करना है. सेम आइटम है. मिला? कितना है रामनारायण? 150 रामनारायण. और नीलेश है. तो नीलेश 250 है. और इंटरेस्ट नहीं. ये बाजू शंकर ब्रदर्स है क्या? नहीं. सैलरीज नहीं है. जितेंद्र है. जितेंद्र है. बाय जितेंद्र. कितना अमाउंट? 110. और वेजेस है. वेजेस 275 है. बाय वेजेस 275. और प्रभा नहीं. सुरेश नहीं. That's it. So I think 4 items. Just take your calculator. Start with 360, right? 360. और what is the rule? Normal है कि OD है? Normal है तो minus plus और OD है तो plus minus. Logic वही है. Check.
क्योंकि ये CB अप PB डाउन और ये CB डाउन PB अप PB फ्लैट. This is clear? CB up PB flat, CB down PB flat. So this is minus, this is plus, minus 400 plus 385. Match हो रहा है? Statement is also very simple. How to do the statement of this? We start with bank balance as per cash book. I was 360. Then add. What have you added? You have added these two items. What statement you will write for this? Checks. क्या है ये? CB के क्रेडिट में है लेकिन PB में नहीं दिख रहा है. शो के लिए कौन क्रेडिट है? शो ऑफ करेगा क्या? नया फैशन है. ये रिकॉर्ड करने घूमने का. ये checks issued but not presented. दो चेक्स आपने इश्यू किए हैं. जितेंद्र को इश्यू किया है कितने का? 110 का. और बेसिस के लिए इश्यू किया है 275 का. 385 आया. 385 745. Then लेस में ये क्या लेस करेंगे? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. इसका चेक्स था रामानारायण. This is 150 and Nilesh. This is 400. You subtract this, you add this, you arrive at 340. But this is bank balance as per passbook. नया रील बन के आ गया है ना? रील सच में ट्रैफिक काफी में भी रील काफी में भी रील बना लिया. कोला कॉल किया था कोला. समझे ये वाला? डिफरेंट मंथ सेम आइटम, सेम मंथ डिफरेंट आइटम. एक्स्ट्रा क्लियर है? अब एक सम आपका बचा है वो आप खुद से ट्राई कीजिए. दैट इज आई थिंक सम नंबर 28, right? But I think 28 is different one. 28 is different one. हाँ, उसमें कैश बुक नीचे है, पासबुक ऊपर है. दिसंबर का कैश बुक है, जैन का पासबुक है, दिख रहा है? Sum number 28. Right? Get it on your own. What will you compare? That is important. उल्टा बैलेंस कंपेयर करो, जिंदगी में आंसर नहीं मिलने वाला है. क्या कंपेयर करोगे किसके साथ? वो देख लो 28 में. एक मिनट देख लो 28 में किसको किसके साथ कंपेयर करना है? नीचे वाला ऊपर वाला बराबर है क्या? अमाउंट बोला. अमाउंट बैलेंस का अमाउंट. You will compare 4680 with 3700. Is that right? 4680 से स्टार्ट करना है, 3700 पे पहुंचना है. Okay? So, copy this. Do 28 on your own. Fast.
Check issued but not presented. December wages. Check deposited but not collected. This is deposited but not collected. Issued but not collected. बोल रहे हैं इधर का स्टेटमेंट इज वेरी चिंदी. कैश बुक का ही 2 आइटम्स आएगा. अरे एग्जाम में कभी आया नहीं है ना. आज तक तो नहीं आया लेकिन मॉड्यूल में है तो ये नेवर नो. जियांश नहीं है ना. इधर वालिदा नहीं. और भी गया थे. जी बोल. हेलो 600 रुपए ना. उसके बाद Exactly.
अरे बोला मैं सवाई मुद्दे ना तेरे नीचे आ गया भाई तेरे नीचे हो गया See, different month extract. What do you do in different month? Compare the closing balance of cash book, that is previous month, with the opening balance of passbook of next month. बराबर है? Opening of passbook becomes closing of previous month. समझ में आया? Compare debit side of cash book with credit side of passbook and mark common items and vice versa. मतलब debit credit, credit debit, common item. क्या क्या ये है अपना कैच ये है कि you have to mark same item. Different month, same item, same month, different item. And always move from CB to DB. बराबर है? Always move from CB to DB. नॉर्मल है तो माइनस प्लस, ओडी है तो प्लस. उसका आंसर आया? कौन सा करेगा? 28. 28 आया? 28 done. That's it. Move to rectification. हाँ भाई ये लिखना है. ये नहीं लिखा है टाइम पास के लिए. चलो छाप दो. वेरी रेयर चांस. अगर आया तो उल्टा करने का. ये पीबी टू सी पे जा रहे हो अगर यू हैव टू गो फ्रॉम पीबी टू सी. देन नॉर्मल है तो प्लस माइनस, हो गया तो माइनस. व्हाट मार्क के हाँ बस खाली उल्टा. पासबुक टू कैश बुक जा रहे हो तो प्लस माइनस, माइनस प्लस, मार्क द सेम आइटम. तो पासबुक वाले आइटम्स मिलेंगे आपको. इंटरेस्ट वगैरह है जो नेक्स्ट मंथ में कैश बुक में आया है, डिविडेंड है जो नेक्स्ट मंथ में आया है. सेम पीबी टू कीप सीबी जाना पड़ेगा स्टार्टिंग विथ दिसंबर. हाँ पासबुक का क्लोजिंग से कर दो. अगर दिसंबर का पासबुक और जैन का कैश बुक चाहिए नहीं चलेगा एग्जाम में. थर्ड टाइम
चलो किया कॉपी हो गया यहाँ से और starting. This is the starting. This is the 2000. लास्ट होता है ना पूरा 11 पे पार्टनरशिप बट पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट नहीं पार्टनरशिप का चलो now let's move on to the next topic, rectification of errors. So ये हो गया 28 का आया आंसर 28 is clear. रोज का रोज प्रैक्टिस करते रहना. मॉड्यूल आपके पास है लिंक मैंने भेजा हुआ है, पीडीएफ है, लिंक है. नहीं मिल रहा है जस्ट टाइप ICAI CA Foundation on Google. ICAI CA Foundation. You get the link for modules. Great. Okay? नहीं मिल रहा तो मेरे को बोलो, मैं शेयर कर देता हूँ. हार्ड कॉपी है तो वहां से पढ़ने का चालू कर दो. जो जो टॉपिक्स हो गया उसका मॉड्यूल क्वेश्चंस परफेक्टली आना चाहिए. मॉड्यूल आता है ना 80+ guaranteed in accounts. Module, that is the key. Is it clear? सेम मतलब एकदम रिलेटेड. आया 5-10% एक्स्ट्रा आया तो भी क्रैक कर पाओ अगर मॉड्यूल किया तो. ओके, इट्स नॉट वेगली डिफरेंट फ्रॉम मॉड्यूल. दैट्स इट. वही रहेगा. चलो नाउ let's move to rectification of errors. मुझे बताओ what do you mean by rectification? Rectification of errors means what? Correction of mistakes, right? Whatever mistakes we have committed during the year in the books of accounts, we need to rectify them in this topic. We have done this in 11th standard also. कोई ऐसा है जिसने प्योर ऑप्शन में छोड़ दिया था ये टॉपिक तो वाट लगेगा. प्योर ऑप्शन तुमको मेहनत करना पड़ेगा. शेयर द वीडियो लिंक बेसिक्स करके आना पड़ेगा. इतना भी ऑप्शन में छोड़ा है तो वाट लगेगा. ठीक है, तो बैठा तो था ना क्लास में गांडा आया मजा अटेंड तो किया था ना. हां सर लॉन्ग रिवर्स करेक्ट रेक्टिफाई इतना सारा 2 हफ्ते तक पढ़ा तुमने नहीं पढ़ा. क्लास में आके बैठे रहेंगे तो भी हुआ रहेगा. बिल्कुल शक्ल ही नहीं देखा ऐसा में बात कर रहा है. So what do you mean by rectification? Cancellation of mistakes. Mistake का rectification मतलब correction of mistakes. Okay, correction of mistakes. Now how to correct an error? Error को correct कैसे करने का? Suppose कुछ mistake हो गया. Let's say for example I wanted to pass an entry machinery to cash. मैंने मशीन खरीदा था. I wanted to pass an entry machinery to cash 20,000. By mistake मैंने पास कर दिया furniture to cash. ये गड़बड़ हो गया. Machinery to cash का हो गया है furniture to cash. So I cannot just scribble it and write furniture की जगह machinery. Not possible. So how to tackle, how to do rectification? 2 पार्ट का काम है. Rectification is a 2-step process. याद है 2 steps.
क्या है? कैंसिलेशन ऑफ रॉन्ग एंड इंक्लूजन ऑफ राइट. कैंसिलेशन ऑफ रॉन्ग एंड इंक्लूजन ऑफ राइट. जो हाँ गलत है उसको हटाओ और जो सही है उसको लाओ. बराबर है? गलत को हटाओ, सही को लेके आओ. मेरे को करना था ये, मैंने कर दिया ये. गलत को हटाओ और सही को लेके आओ. तो इसमें गलत क्या हुआ? मशीनरी के जगह फर्नीचर आ गया. ये गलत हुआ. अब गलत को कैसे हटाना है? बहुत सिंपल है, ऑपोजिट है. डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट. तो फर्नीचर गलती से डेबिट हो गया है, उसको क्या दे दो? क्रेडिट. और इतने से काम नहीं बनता है, गलत को तो हटाना ही है और सही को लेके आना है. सही को कैसे लाओगे? गिव द सेम इफेक्ट. डेबिट को डेबिट, क्रेडिट को क्रेडिट. तो मशीनरी वॉज राइट, उसको लेके आना है. कैश तो हुआ ही है, कैश तो क्रेडिट ही हुआ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. लोचा क्या था? गलती से फर्नीचर डेबिट हो गया, तो आई गिव इट अ क्रेडिट. एंड मशीनरी को डेबिट देना था जो नहीं मिला, तो अब दे दो डेबिट. सो योर रेक्टिफाइड एंट्री इज व्हाट? मशीनरी टू फर्नीचर. मशीनरी टू फर्नीचर. तो जब हम रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं तो हम करते क्या है? बेसिकली जो रॉन्ग एंट्री है ना, उसको हटाते नहीं है बुक्स में से. रॉन्ग को हम लोग बुक्स में से हटाते नहीं है. देखो मुझे करना क्या था? ये करना था, राइट करना था, लेकिन मैंने किया क्या? ये किया. तो ये मैं ऐसे स्क्रिबल करके हटा नहीं सकता. I will not remove this entry from the book, but I will pass a catalytic entry. This is like a catalytic entry, rectified entry. ये क्या करेगा? ये wrong के effect को nullify कर देगा. Means what I've actually done, I have not passed the correct entry anywhere. I have not passed the correct entry anywhere. What did I do? I did the wrong entry and then I did the rectified entry. So if you combine the wrong entry with the rectified entry, check what you will get. Combine the wrong with the rectified. What are you getting? This is getting cancelled out. Yeah. What are you getting? Machine to correct. That is the correct. So मैंने correct entry कहीं लिखा नहीं, लेकिन wrong entry के साथ एक और entry को ऐसे जोड़ दिया, so that the combined of wrong and that rectified entry will give me what? Correct. That is what I have done. Is it clear? So what do you do in the process of rectification? Two-step process to rectify any damn error. What are you going to do? Cancel the wrong and include the right. How do you cancel the wrong? Give the reverse effect. And how do you include the right? Give the same effect. Debit को debit, credit को credit. Reverse मतलब debit को credit, credit को debit. समझ आया? पक्का? तो प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन इतना ही है. कैंसलेशन ऑफ रॉन्ग, इंक्लूजन ऑफ राइट. यही चीज को हम स्टेप वाइज करते हैं. वी मेक 4 कॉलम्स: रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट एंड रेक्टिफाइड. रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट एंड रेक्टिफाइड. तो पहले आप करेक्ट एंट्री लिखते हो, फिर आप रॉन्ग एंट्री लिखते हो, फिर रॉन्ग को क्या करते हो? उल्टा करते हो. एंड हाउ डू यू गेट द रेक्टिफाइड एंट्री? वो रिवर्स और करेक्ट को ज्वाइन करते हो. व्हाट इज रिवर्स और करेक्ट को ज्वाइन करना? यही किया. रिवर्स क्या है? कैंसलेशन ऑफ रॉन्ग. एंड करेक्ट क्या है? इंक्लूजन ऑफ राइट. So cancellation of wrong plus inclusion of right gives me my rectified. That is what is the concept. Is it clear? Now for that you need to understand the 4 types of errors. जितने भी mistakes होते हैं उनको हम 4 types के errors में classify कर सकते हैं. याद है आपको 4 types of errors? क्या होते हैं 4 types of errors? Principal, commission, omission, and compensating. Let's understand them one by one. Principal, commission, omission and compensating. So errors can be broadly classified into principal, commission, omission and compensating. This is omission, this is commission and this is compensating. See, error of principle. Broadly there are of 2 types: error of principle and clerical errors. Principle मतलब क्या? Important mistake. Clerical मतलब silly mistake.
Okay, nowadays because of computer usage and tally and accounting software, these errors have been minimized, negligible हो चुके हैं. Now the problem is with these errors. ये problem क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि these errors are committed intentionally. Frauds का one of the major reason is this error of principle. Anyone remembers when do you commit an error of principle? How do you define an error of principle? Capital and revenue nature items. You mix up capital and revenue nature. What is capital nature item? Long term assets basically, and you mix them with short term items, expenses, assets with expenses, or liabilities with income. Long term with short term, balance sheet items with trading and P&L items. That is what is called as error of principle. तो लोचा क्या होता है? आपका प्रॉफिट भी गलत हो जाता है और बैलेंस शीट का वैल्यू भी गलत हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, machinery purchase was wrongly debited to wages account. Machinery purchased was wrongly charged to wages account. करना था मशीन को चार्ज कर दिया. अब मशीन क्या है? Asset. और wages क्या है? Expense. हुआ ना बैलेंस शीट आइटम विद एक्सपेंस. That is called error of principle. Goods withdrawn by proprietor for personal use were debited to salary account. What is the correct entry for goods withdrawn by proprietor? Drawings to purchase. And were debited to salary account. Salary to purchase. तो करना था drawings को debit, कर दिया salary को debit. Now drawings is a part of balance sheet. It's like an asset. Capital से घटता है. And salary is like an expense. Loan taken 50,000 rupees was credited to sundry income account. Loan taken 50,000. What is the entry? Bank to loan, and was credited to sundry income. So bank to sundry income. तो लेना कर क्रेडिट करना था लोन को, which is a liability. कर दिया किसको? sundry income को. तो this is what is called as error of principle. Long term item with short term items. Reliance Industry ने 50 करोड़ का रिपेयर्स का काम करवाया है. सारे कंप्यूटर्स, एसी, एसेट्स को रिपेयर्स करवाया. तो एक्चुअली रिपेयर्स आर इट्स एक्सपेंस, बट उसने बता दिया एन एसेट. उसने बता दिया लाइक एन एसेट. तो होगा क्या? रिपेयर्स तो एक्सपेंस दिखेगा नहीं, उल्टा एसेट दिख जाएगा बुक में. बुक की एंट्री खाली चेंज की है. रिपेयर्स को बता दिया एसेट, रिपेयर्स हट गया तो खर्चा कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ गया तो सामने कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि प्रॉफिट्स गो टू कैपिटल. यहाँ पे रिजर्व्स, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में रिजर्व, और एसेट तो है ही वहां पे 50 लाख का, 50 करोड़ का. तो क्या होगा? इट शोज योर बिजनेस मोर ग्लोरिफाइड देन इट इज एक्चुअली. अगर आप एक्सपेंस को बता देते हो एज एन एसेट, इफ यू शो एक्सपेंस के जगह एक एसेट, व्हाट विल हैपन? प्रॉफिट भी बढ़ेगा, बैलेंस शीट में एसेट नया आ जाएगा, जैसा है उससे बेहतर दिखने लगेगा. इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग. क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग. इसका ऑपोजिट होता है सीक्रेट रिजर्व. सीक्रेट रिजर्व में एसेट्स को बता दिया जाता है एज एक्सपेंसेस, एसेट्स को बता दिया जाता है एज. ये होना नहीं चाहिए, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बट जानबूझ के ये किया जाता है टू कुक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इज इट क्लियर? तो क्या करेंगे? आपने बड़ा सा एसेट खरीदा है, 500 करोड़ का मशीन, आपने बता दिया एज एन एक्सपेंस. 500 करोड़ का मशीन लिया है, दिखा दिया एज एन एक्सपेंस, बुक में दिखा दिया एज एन एक्सपेंस. सो एसेट गायब, वो कहाँ आ गया? एक्सपेंस में आ गया. प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा. प्रॉफिट घटेगा, कैपिटल घटेगा, रिजर्व्स घटेगा, और बैलेंस शीट में एसेट तो घटा हुआ ही है. बैलेंस शीट विल स्टिल टैली, बट इट विल बी अ श्रंक बैलेंस शीट. It will be a shrunk balance sheet by 500 crores. मतलब जितना actual value of business है उससे business कम दिखेगा. That's called secret reserves. तो ये दोनों टेक्निक इस्तेमाल किए जाते हैं by चोर मैनेजमेंट to manipulate the books of accounts. तो majority of the frauds, क्योंकि मैंने क्या बोला, computerized accounting आने के बाद ये types of mistake होने के chances are very less. तो लोचा किसमें करने का चांस है? इसमें पता ही नहीं चलता है. कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेगा, एंट्री डाल रहे हो आप, मशीन टू कैश डाल रहे हो, उसकी जगह रिपेयर्स टू कैश डालो, थोड़ी ना बोलने वाला है. वो पैप कब करेगा? जब डेबिट को क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट को डेबिट नहीं है, डेबिट क्रेडिट में गलत अमाउंट है तो वो अटक जाएगा. मोस्टली फॉर वन साइडेड एरर इट विल स्टॉप वर्किंग.
But for two-sided error which affect debits and credits equally, it is going to take the entry as it is. So that's how they manipulate the books of accounts. So that is the responsibility of the CAs to catch the mistakes, audit में check करने का, और अगर लोचा वोचा है तो क्वालिफाइड रिपोर्ट, मतलब मिस्टेक वाला रिपोर्ट है ऐसा करके क्लीन चिट देने का नहीं है ना उनका। तो अपने को चेक करने का कि मिस्टेक वाला अकाउंट आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओके। Actually, it is not allowed, but few businesses do that also to keep the share price lower. If the management thinks that आगे opportunity अच्छा है and it needs time to accumulate the shares from the market, तो मार्केट से उठाने के लिए तो सस्ता भाव रहेगा ना, जब तक श्रंक बैलेंस शीट है कोई भाव नहीं देता है शेयर को, तो शेयर प्राइस नीचे मरता रहेगा तो खरीदता रहेगा, फिर डिस्प्ले करेगा कि हाँ ये हमारे प्रॉफिट्स है, फिर शेयर प्राइस जंप होगा तो वो बेच देगा। So see, the only way out for retail investors मतलब watch यार, जो इन्वेस्टर है हम जैसे अपने को पता कैसे चलेगा कि लोचा है बुक्स में। सो वन वे इज डिगिंग वेरी डीप इनटू अ पर्टिकुलर बिजनेस। जितना ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट्स इंफॉर्मेशन है, निकालने का ट्राई करो, अदरवाइज आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स very out of reach because these management and companies are dealing with very secretive environment और अपने को choice possibility नहीं है कि अपन वो सब breach करके देख सके। तो better to go by a mutual fund route because in mutual funds the managers and all they are directly dealing with the management and promoter of the company, so they have best of the best information with them. If you go by the mutual fund route, नहीं वो पैसा जनरली खाएगा नहीं क्योंकि उसका परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के ऊपर रहता है। वो उसको पैसा मिला, वो दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया, ऐसा सब लोग नहीं करते, तो उसका परफॉर्मेंस इज ऑन दैट म्यूचुअल फंड होता है। 100 में से एक दो ऐसा रहेगा, 99% दे आर इन द बिजनेस, तो म्यूचुअल फंड में है, सब लोग थोड़ी भाग जाता है यूएस थोड़ी करके, तो उसका परफॉर्मेंस इज ऑन दैट म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस। तो वो नहीं परफॉर्म करेगा तो उसका बोनस वगैरह काम कट जाएगा। तो दे आर द बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, इट्स बेटर टू गो विद एक्सपर्ट्स इन म्यूचुअल फंड। So अगर बहुत there are few very good companies which do not manipulate the accounts, जो बाहर दिखता है ना आपको ये सब एडवर्टाइज करता है, let's say नेस्ले है, बोर्नविटा आपका बैंक्स हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, या फिर आपका अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, फिर आपका TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया। All these are good companies. They don't manipulate most of the accounts, but mid cap, small cap companies, shady companies बोलता है, उसमें फिर आपको हाथ पैर मारना है या तो फिर म्यूचुअल फंड्स। So error of principle. How to identify that when there is a mix-up of what? Capital and revenue nature items. Okay. Then we go to the clerical errors, which are not so important, but important from a theoretical perspective. What are clerical errors? Oversight का mistake, नाम में लिखा है clerk, lower level, common silly mistakes due to oversight. They are classified into 3 types: omission, commission, and compensating. लिखना है ना 20 बार लिखना है ना एडजस्टमेंट। 40 omission, commission and compensating. What are errors of omission? नाम में लिखा है, भूल गया। So there are 2 types of omission. Anyone remembers what are 2 types of omission? Complete omission and partial omission. What are complete omission? जर्नल में एंट्री नहीं किया, कंप्लीट ओमिशन। वाउचर्स है, इनवॉइसेस है, बिल्स है, लेकिन एंट्री करना भूल गए, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ना डेबिट है ना क्रेडिट है। परचेज गुड्स ऑफ 5000 फ्रॉम राम रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड, सोल्ड गुड्स ऑफ 50000 फॉर कैश रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड।
तो रॉन्ग एंट्री करना भूल गए, किया ही नहीं. व्हाट इज पार्शियल ओमिशन? एक इफेक्ट है. डेबिट है, क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट है, डेबिट है. मतलब जर्नल में क्या, लेजर में लोचा वाला, डेबिट दिया, क्रेडिट नहीं दिया, क्रेडिट दिया, डेबिट नहीं दिया. दिस एरर इज नॉट पॉसिबल इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट. कंप्यूटर वोंट एक्सेप्ट द एंट्री. सो डेबिट क्रेडिट का कैसे हो सकता है? इसमें 3 कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं आपको. 3 कीवर्ड्स. व्हाट आर द 3 कीवर्ड्स? एनीवन रिमेंबर? क्रेडिटेड, डेबिटेड एंड पोस्टेड. सो मतलब आपको दिया रहेगा, ध्यान से सुनना. परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 5000, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 5000 were not posted to purchase account. Purchased goods for cash 5000 were not posted to purchase. ऐसा नहीं बोला remain unrecorded in the books. ऐसा बोला कि not posted to purchase account या not debited to purchase account. तो इसका मतलब क्या करना था? purchase to cash कर दिया dash to. dash मतलब डेबिट का इफेक्ट दिया ही नहीं, डेबिट का इफेक्ट दिया ही नहीं. This is called partial omission. Another example. Received commission rupees 2000 was not credited to commission account या not posted to commission account. तो करना था cash to commission, किया cash to dash. मतलब cash में लिखा to commission, commission में लिखना भूल गए. समझ में आ रहा है? Suppose the entry is goods purchased on credit from Rahul were not posted to Rahul's account. Goods purchased on credit from Rahul. What is the entry? Were not posted to Rahul's account. Purchased to that. So not posted, not credited, not debited. That is your keyword for identifying partial omission. Understood? तो complete omission मतलब न डेबिट न क्रेडिट, दोनों गायब. और पार्शियल में डेबिट है, क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट है, डेबिट नहीं है. सॉर्टेड यहाँ तक? Now you have one more, that is commission. Error of commission in clerical errors. What is error of commission? किया लेकिन गलत किया, किया लेकिन गलत किया. Commit. You did it, but you did wrong. Commission में किया ही भूल गया, इधर किया लेकिन गलत किया. So they are classified into 3 further types. Anyone remember? Wrong account, wrong amount, and wrong side. Wrong account, wrong amount and wrong. तो सर प्रिंसिपल भी तो रॉन्ग था, इसमें और इसमें क्या फर्क है? कैपिटल और कैपिटल. हाँ, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का मिक्सअप नहीं होना चाहिए, तो वो कमीशन है. लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का मिक्सअप हो गया तो प्रिंसिपल है. लॉन्ग और शॉर्ट का मिक्सअप है तो प्रिंसिपल. लॉन्ग और शॉर्ट का मिक्सअप नहीं है और गलत किया है तो कमीशन. मतलब शॉर्ट शॉर्ट में गड़बड़, लॉन्ग लॉन्ग में गड़बड़. लाइक wrong account. I'll give you an example. Wrong account. Salary paid were debited to wages account. Correct entry था salary to cash. Wrong कर दिया wages. Rent received was credited to commission account. तो करना था cash to rent, कर दिया cash to commission. Machine purchased was debited to furniture account. Machine purchased was debited to furniture. करना था machine to cash, कर दिया furniture. The first one which I took, that was an error of commission. What did I do? Long and short. Not a mix-up of long term and short term. Then it is commission. Wrong account. Wrong amount. Can you give me an example of wrong amount? Very simple. Wrong amount का क्या रहेगा? हाँ, आपने capital introduced 1 lakh was recorded as 10,000. तो cash to capital 1 lakh हो गया, cash to capital 10,000. अच्छा, सुनना ध्यान से. Capital introduced 1 lakh was recorded as capital introduced 10,000. Cash to capital 1 lakh हो गया, cash to capital 10. This is also error of commission. It can happen like this also. Capital introduced 1 lakh. Capital introduced 1 lakh was credited to capital account as 10,000. करना था cash to capital 1 lakh was credited to capital account as 10,000. मतलब कैश में 1 लाख लिखा तो कैपिटल में 10,000, बाकी डैश. दिस इज आल्सो एरर ऑफ. इज दिस क्लियर? रॉन्ग अमाउंट, दोनों में भी रॉन्ग अमाउंट हो सकता है, एक में भी रॉन्ग अमाउंट हो सकता है. ओके, दिस इज आल्सो एरर ऑफ कमीशन. व्हाट इज रॉन्ग साइड? सॉरी, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट. मींस व्हाट?
salary paid 10,000. Salary paid 10,000 was credited to salary account. Salary paid 10,000 was credited to salary account. मतलब क्या करना था क्या? Salary to cash 10,000. Okay? It was credited to salary account. Is it given that it was debited to cash? Credited, debited, posted मतलब एक account. तो रॉन्ग एंट्री क्या होगा? डैश टू कैश टू सैलरी. इसका मतलब आपने गलती से दोनों क्रेडिट दे दिया. कैश में तो लिखा बाय सैलरी, सैलरी में लिख दिया बाय कैश, तो कैश के बदले बाय कैश. दिस इज व्हाट इज रॉन्ग साइड. रॉन्ग साइड मींस डेबिट के जगह क्रेडिट और क्रेडिट के जगह. वन मोर एग्जांपल. Received interest rupees 5,000. Received interest rupees 5,000 was posted to the debit of interest account. Received interest 5,000 was posted to the debit of interest account. The received interest की correct entry क्या होती है? Cash to interest 5,000 was posted to the debit of interest account. So interest debit हो गया, cash तो debit हो गया. एक account में debited credited posted, एक ही account में लोग. So 5, 5, 10. Is that clear? This is what is wrong side. Debit का credit, credit का debit. And wrong amount, wrong account, wrong side. All these combinedly they are known as what? Errors of account. Even the casting errors. Remember we used to do undercasting and overcasting. Purchase undercasted, sales overcasted, capital undercasted, furniture overcasted. Casting means what? Totaling. टोटलिंग हद से ज्यादा बताया तो ओवरकास्टिंग, टोटलिंग लिमिट से कम बताया तो दैट इज अंडरकास्टिंग. उसको भी क्या बोलते हैं? किया लेकिन गलत किया ना, उसको भी बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन. सो कास्टिंग एरर्स आर ऑल एरर्स ऑफ कमीशन. ओके. द लास्ट वंस आर कॉम्पेंसेटिंग एरर. कॉम्पेंसेटिंग याद है किसी को? इज देयर अ सेपरेट टाइप ऑफ कॉम्पेंसेटिंग एरर? नो. व्हाट आर कॉम्पेंसेटिंग? Two errors committed together such that their debits and credits cancel out each other. Two errors committed together such that their debits and credits cancel out each other, then it is called compensating. So I'll give you an example. Let's say purchase goods for cash 5,000. Suna ध्यान से. Purchase goods for cash 5,000 was purchase goods for cash 5,000 was not posted to purchase account. Purchase goods for cash 5,000 was not posted to purchase account. तो करना था क्या? Purchase to cash, लेकिन कर दिया क्या? बराबर है? Okay. This is which type of error? Individually partial omission. क्योंकि परचेज में नहीं किया, कैश में किया, ये समझा? इंडिविजुअली इट इज पार्शियल ओमिशन, इंडिविजुअली. बट कॉम्पेंसेटिंग में एक एरर नहीं होता, दो एरर्स होते हैं. टू एरर्स आर कमिटेड. तो एक तो ये हुआ. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ओके. रिसीव्ड रेंट rupees 10,000. Received rent rupees 10,000, but it was credited to rent as 5,000. Received rent 10,000, but it was credited to rent as 5,000. So received rent की entry क्या होती है? 10,000 की cash flow. But it was credited to rent as 5,000. What is the wrong entry? Cash 10 to rent 5 to that. So what is the type of error over here? This is not partial omission. This is commission. Why? किया लेकिन गलत. Instead of 10 you have recorded 5. You have recorded, but you have recorded a wrong amount. Right? So now if you see, this is a partial omission error. This is a commission error. But if you merge these two and see what has happened, इधर क्या है? Short debit है 5 का, और इधर क्या है? Short credit है 5 का. So when you make a trial balance, there will be a short debit and a short credit. So it will get tallied. So compensating error do not affect trial balance. So trial balance will agree in spite of compensating errors. What are compensating errors? समझ में आया? There may be two partial omission errors. There may be two commission errors.
or there may be a combination of a partial omission and a commission error. But such that combination कैसा होना चाहिए? Your debits and credits should be equally affected. Debit 5 से कम है तो credit भी 5 से कम है. Debit 10 से ज्यादा है तो credit भी 10 से ज्यादा है. Same effect हो रहा है, nullify हो रहा है, trial balance tally हो रहा है, मतलब we call it compensating error. Is this clear? ये एकदम थियोरेटिकल कंसेप्ट है. प्रैक्टिकली कॉम्पेंसेटिंग एरर्स होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि अमाउंट्स यहाँ पे आप राउंड फिगर करते हो. देयर इज एन अमाउंट 4232 एंड देयर इज एन अमाउंट 3422. अगर एरर भी हुआ तो भी वो अमाउंट्स कभी मैच होने वाला नहीं है. तो वेरी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में तो ये एरर पॉसिबल ही नहीं है कि वन साइडेड एरर ही नहीं हो सकता वहां पे पहले. ओके, समझ में आया? तो कॉम्पेंसेटिंग two errors such that the debits and credits cancel out each other. Four types of errors clear है? बताओ प्रिंसिपल में क्या करते हो आप? Long term and short term mix up. Then what about omission? Complete omission, partial. Complete में पूरा खा गए, partial में debit and credit में. Commission, wrong amount, wrong account and wrong side. What about compensating? Two errors such that debits and credits cancel out each other. Now there are one more classification of these errors. They are called as two-sided and one-sided. Anyone knows what are two-sided errors? They do not affect trial. Exactly. Two-sided errors, they do not affect means ये वो error है जिधर debits and credits दोनों equally affect होता है. टू साइडेड एरर में क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट इक्वली. यही एरर्स है, चार एरर्स है. इनको एक और तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो, टू साइडेड एंड वन साइडेड. व्हाट इज टू साइडेड? व्हेन योर डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर इक्वली अफेक्टेड. जैसे कि ये वाला मशीन खरीदना था, वेजेस को डेबिट कर दिया. और परचेज अ मशीन फॉर 1 लाख वेयर डेबिटेड टू वेजेस. तो करेक्ट था मशीन टू कैश 1 लाख, रॉन्ग है वेजेस टू कैश 1 लाख. अकाउंट अलग है लेकिन अमाउंट सेम है डेबिट और क्रेडिट में. तो डेबिट और क्रेडिट का साइड अगर इक्वली अफेक्टेड है, इट इज कॉल्ड टू साइडेड एरर्स. रॉन्ग एंट्री में डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट अगर सेम है तो इट इज कॉल्ड टू साइडेड एरर्स. डेबिट क्रेडिट शुड बी इक्वली अफेक्टेड. गॉट इट? वन साइडेड में देयर इज अ मिसमैच ऑफ डेबिट क्रेडिट. डेबिट में ज्यादा, क्रेडिट में कम, या डेबिट में कम, क्रेडिट में ज्यादा. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ले लो, आपने स्टेशनरी खरीदी है 5000 की, वाज नॉट पोस्टेड टू स्टेशनरी अकाउंट. स्टेशनरी परचेज्ड ऑफ 5000, दे आर नॉट पोस्टेड टू स्टेशनरी. तो करना था स्टेशनरी टू कैश 5, क्या किया? कैश टू कैश. क्रेडिट में लेगा, डेबिट में. दिस इज अ वन साइडेड एरर. समझ में आया? When there is an imbalance between debit credit, we call it one-sided. When there is no mismatch of debit credit in amount, we call it two-sided. So can you tell me error of principle, are they two-sided or one-sided? Always two-sided. Always two-sided. यही तो रीजन है आज के जमाने में ये एरर्स फ्रॉड्स की तरह आ रहे हैं. Because कंप्यूटर को पता आपने अमाउंट चेंज किया ही नहीं है. करना था रिपेयर्स टू कैश 50,000, कर दिया फर्नीचर टू कैश 50,000. समझ में आ रहा है? दोनों जगह डेबिट क्रेडिट में अमाउंट तो सेम ही है ना. तो दे आर ऑलवेज टू साइडेड. ट्रायल बैलेंस कैन नॉट डिटेक्ट दीज एरर्स, नीदर योर बैलेंस शीट नॉर योर फाइनल अकाउंट्स नथिंग. व्हाट अबाउट ओमिशन का है? आर दे टू साइडेड, वन साइडेड और बोथ? बोथ. कंप्लीट ओमिशन इज समझा क्यों? What is complete omission? Debit है ना credit है, equally affected. What is partial omission? Debit है credit नहीं है, credit है debit नहीं है. It will affect the trial balance. It won't tally. One sided की वजह से trial balance tally नहीं होता. Two sided की वजह से trial balance tally हो जाता है. तो omission are both. What about commission? Commission क्या है? Both. पक्का? Commission also are both. Can you give me an example of two-sided commission error? दोनों में wrong amount. मतलब पहला वाला जो एग्जाम कैश टू कैपिटल 1 लाख का, कैश टू कैपिटल 10,000.
दोनों में रॉन्ग अमाउंट, या फिर ऐसा किया कैश टू कैपिटल 1 लाख, कैश में 1 लाख लिखा, कैपिटल में 10,000. दिस इज 2 और 1 वन साइड. आर यू एबल टू आइडेंटिफाई? पक्का? टू साइडेड में दोनों डेबिट क्रेडिट इक्वली इफेक्ट हो रहा है, इसमें इम्बैलेंस हो रहा है. व्हाट आर कमीशन का एरर्स अगेन? व्हाट आर कॉम्पेंसेटिंग एरर्स? ओनली टू साइडेड. उसके नाम में ही लिखा है कि टू एरर्स सच दैट डेबिट्स एंड क्रेडिट्स कैंसल आउट ईच अदर. वो एरर्स को इंडिविजुअली देखते ही नहीं है. कॉम्पेंसेटिंग मतलब जोड़ी में एरर आता है. जोड़ी में कैसा आता है? डेबिट क्रेडिट नलिफाइज ईच अदर. तो ऑलवेज टू साइड. समझा? बोलो. प्रिंसिपल ऑलवेज two sided. It cannot be one sided. Okay, if it is one sided, then it is not due to principal, it is due to commission. That way. Principal two sided, omission both, commission both, and compensating are always two sided. Okay. Now, the rectification process, it remains the same. Wrong account का नहीं होगा, wrong amount का ही होगा, wrong side का होगा. रॉन्ग अकाउंट प्लस रॉन्ग अमाउंट रहा, अमाउंट का ही लोचा है ना, मैं रॉन्ग अकाउंट में नहीं हो. अभी सुनो, आपका प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन दैट इज सेम. कोई भी एरर हो, ये थियोरेटिकल कंसेप्ट समझने के लिए ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में आता है. कोई भी एरर को रेक्टिफाई करने का वही तरीका क्या है? रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट, रेक्टिफाई. बराबर है? अब किस स्टेज पे आप रेक्टिफाई कर रहे हो एरर्स, वो समझना जरूरी है. 11th स्टैंडर्ड में हमने जो रेक्टिफिकेशन सीखा था, दैट वाज आफ्टर ट्रायल बैलेंस. मतलब ट्रायल बैलेंस बनाया, वो टैली नहीं हुआ, एक सस्पेंस अकाउंट आ जाता था वहां पर. व्हाट इज अ सस्पेंस अकाउंट? व्हेन योर ट्रायल बैलेंस डजंट टैली, तो आप जो गैप रहते हैं उधर एक आर्टिफिशियल अकाउंट डाल देते हो, दैट इज सस्पेंस. फिर उस सस्पेंस की मदद से आप एरर्स को रेक्टिफाई करते हो. तो बोलने का मतलब, व्हेन वी यूज्ड टू रेक्टिफाई आफ्टर ट्रायल बैलेंस. फिर हमने एक एग्जांपल में देखा था, बिफोर ट्रायल बैलेंस में हमने रेक्टिफाई किया था, उधर सस्पेंस यूज नहीं किया था और नोट्स लिखा था. तो यहाँ पे सीए में भी आपको ये दोनों है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन, बिफोर ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन, एंड एक और है आफ्टर फाइनल अकाउंट. आफ्टर फाइनल अकाउंट मतलब साल खत्म हो गया विद मिस्टेक्स, नेक्स्ट ईयर आपने रेक्टिफिकेशन किया फॉर एरर्स ऑफ प्रीवियस ईयर. ओके, तो तीन अलग अलग रेक्टिफिकेशन है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर ट्रायल बैलेंस, एंड आफ्टर फाइनल. What do you do if the problem is silent about the stage? What will you assume after trial? Normal rectification after trial. Let's start with the problem. Explain along with that. ऐसा है. Some number. Sum number 2, page 41. Draw कर लो. 4 columns, 4 sides. नहीं, वो बाद में. वो बाद में पहले बेसिक समझ लो. एक काम करो, स्टार्टिंग से वैसे ही करो. चलो, all of you start with the journal only. अच्छा, in which book will you record the rectified entry? Journal proper. और कोई बुक में कर सकते हो आप, परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न्स बुक, सोचो. So which subsidiary book do you record the rectified entries in? JP. तो कैसे करने का? दो साइड लेना है. लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करेंगे? रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट. दिस इज रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री. एंड राइट साइड पे क्या ड्रॉ करेंगे? तो जर्नल प्रॉपर. यू नो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल प्रॉपर? सेम एज जर्नल. नहीं, वो नोट था, हम लोग फेयरिंग चालू कर रहे हैं सीधा. वो वर्किंग नोट, ये फेयर है.
सीधा फेरी करो। अभी नरेशन नहीं लिख रहे हैं, बाद में नरेशन लिखेंगे। लेफ्ट, ये 3 लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। लेफ्ट वाला बनाओ, वो बनाओ, बाद में मैं बोलूंगा आपसे। मार्क्स है ना इसी का है, रॉन्ग रिवर्स करेक्ट का कोई मार्क्स नहीं, तो नहीं भी बनाओगे तो भी चलता है, बट आपको सपोर्ट के लिए जरूरी है। स्टार्टिंग में करो, बाद में बताऊंगा कभी स्किप करना है। अभी नरेशन फिलहाल नहीं लिखेंगे, बाद में नरेशन के साथ करेंगे। नरेशन आता है, इसका क्या है याद है किसी को? नरेशन being whatever the mistake, now rectify. Now. अभी नरेशन नहीं लिखना है, अरे बस एक सम करेंगे ना। बताऊंगा। देखो सम नंबर 2 पेज 41। अब सीए एग्जाम में है ना, उनको प्यार है ये 2 टॉपिक्स है, सीआरएस और रेक्टिफिकेशन। हर एक पेपर में ऑलमोस्ट 10 मार्क का बीआरएस आता है और 10 मार्क का रेक्टिफिकेशन, 10 मार्क्स। They have some attachment to this chapter, I don't know what. तो अगर ये 2 टॉपिक मजबूती से आ गया, आपका पासिंग इधर ही सिक्योर हो जाता है। 10 का बीआरएस, 10 का रेक्टिव, 20 मार्क हो गया। पहला क्वेश्चन में 12 मार्क का ट्रू फॉल्स है, 10 तो क्रैक हो ही जाता है, 30 हो गया। क्योंकि ट्रू फॉल्स लिखने का ही 6 मार्क है, बाकी एक मार्क का रीजन है। एक लाइन भी लिखा तो 1 मार्क, 2 लाइन लिखा तो मिल जाता है। 10 वो हो गया, 30 हुआ। 4 मार्क एक पिद्दी सा क्वेश्चन आता है, सब्सिडरी डेप्री का, जो 11th का बच्चा भी कर लेगा, एकदम बेसिक वाला, स्टार्टिंग वाला। तो 34 हो गया। बाकी 60 मार्क्स में से आपको खाली 6 मार्क लाना है, वो तो इजीली पॉसिबल है। तो 40 मार्क्स तो इजीली क्रैकेबल है अकाउंट्स में। पासिंग इज नॉट एन इश्यू, ओके। You have to cross, you have to score the maximum possible in accounts. Okay, aggregate खींचने वाला आपका accounts ही रहने वाला है, accounts and OC. Sorry. Maximum अपना highest अभी तक 99. India second. इंडिया में बंदा सेकंड था, अनफॉर्चुनेटली। नहीं तो फर्स्ट था, उस साल कभी नहीं आया था, उसी साल एक को 100 भी आया। Was a girl in अपना 99, but उससे पहले that was the first year. Apart from that, highest in this 95, 96, 2021 November or 22 November. November 21. ये कोई एग्जाम ऑनलाइन नहीं हुआ। वीर शाह वो इसका था अपना इंटरनेशनल आईटी आरबी के ऐसा कोई स्कूल आईसीसीएस forgot the school. Right now, he has cleared his inter both the groups. उसने रैंक का लालच नहीं किया, उसको पढ़ना था, नॉलेज गेन करना था, तो इस साइड आएगी बोथ द ग्रुप्स इंडिविजुअली। उसको हर एक ग्रुप में, तभी वो ओल्ड सिलेबस में था, तभी 4 सब्जेक्ट्स थे दोनों में, 4 in group 1, 4 in group 2. He wanted to study everything thoroughly. I was in touch with him during the exams, during the year. पूरा ऑनलाइन किया, नो ऑफलाइन क्लासेस, पूरा पेन ड्राइव लेक्चर, खुद का पेस पे पढ़ाई, A to Z, टैक्स, लॉ, ऑडिट। वो इंटर का पेपर कैसा रहता है, तुम लिख के भी आएगा ना तो तुमको कॉन्फिडेंस रहेगा, नहीं रहेगा कि तुम पास होगा कि फेल, ऐसा रहता है। जिसको लगता है फेल होने वाला पास हो जाएगा, पास होने वाला फेल हो जाएगा, ऐसा रहता है।
उसको thoroughly confident है उसको मार्क्स कितना आएगा. He scored 80 plus in almost all the papers. एक था पेपर में उसको 80 के नीचे आया. अगर वो लाता दोनों ग्रुप तो श्योर रैंक था, but he did not want rank and all. He gave both the groups individually cleared with almost 80 plus marks in all the subjects. सब में 80 plus. Then he started with articleship. KNA में भी articleship है उसका, International Statutory Audit में. And now he has cleared CFA level 1. He's doing CFA level 2 and preparing for final. So good, inspirational story. Again, college he was in NM first, but then he shifted to Kodak. CA के लिए he shifted to Kodak. हाँ बोलो क्या? वो मैंने बोला था याद है? Buy good Fedron को पर्सनल में नाम नहीं लिखा था एक वो स्मार्ट था ऐसा 3-4 घंटा पढ़ेगा ना बट फोकस बहुत अच्छा था उसका. आई टोल्ड यू मेनी टाइम फोकस स्टडी रहेगा ना तुम 3-4 घंटे में भी निकाल लेगा. बट तुम 1000 चीज बोल लेगा ये लेगा वो लेगा. डिसिप्लिन चाहिए. डिसिप्लिन नहीं रहेगा कुछ नहीं होता. वेरी डिसिप्लिन. चलो सब नंबर क्या एज अभी कितना है वो 22 में इंटर फाउंडेशन 21 You guys are what 16? 19 or 20 years old, right? 20 running years. 20 running. चलो सम नंबर 2 देखो 20 रनिंग है. अरे यार नवंबर 22 था बाय मिस्टेक. नवंबर 21 वाज कोविड वाला बैच. वो दूसरा था पिया बोला वाला बैच. दिस नहीं और एग्जाम तो सब ऑफलाइन हुआ. दिस वाज नवंबर 22 फाउंडेशन. या नवंबर 22 फाउंडेशन. तभी नवंबर में दोनों होता था. तभी हम लोग दोनों लेता था. फिर भी स्टार्टेड क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स था दे गो फॉर मे ओनली. जो गया गुजरा है जिसको श्योरिटी नहीं है या फेलियर वो सब नवंबर में. तो एकदम हाफ हार्टेडली पीपल प्रिपेयर फॉर द सेकंड. अभी तो सितंबर अभी आया बट मेजॉरिटी 90% ऑफ द गुड चंक क्राउड दे गो फॉर मे अटेम्प्ट जो आप देने वाले हो. दैट्स व्हाई वी टेक ओनली मे टू मे. अभी वी शुड टेक बोथ मे एंड नवंबर. दिस वाज नवंबर 22. चलो व्हाट सेकेंड वन इंटरव्यू को बोलेगा बात. 500 paid for furniture purchase has been charged to ordinary purchase account. Come on. Tell me 500 paid for furniture purchase. What is the correct answer? No narration. Furniture to cash. Right. Quiet now, listen. This is furniture to cash. It was charged to ordinary purchase account. What is wrong in it? Purchase to cash. Furniture to cash का हो गया purchase to cash. Were you able to identify this? तो कैसे टेक्निक है सॉल्व करने का? पहले करेक्ट एंट्री लिखना है, फिर क्या करना है? रॉन्ग एंट्री लिख देने का, जो करना था और जो किया. बराबर. And then just in your brain decide what type of error is this. एक बार पता कर लो so that objective के लिए भी काम आ जाए. What type of error is this?
Principal. Furniture purchase, asset expense. Reverse, you get cash to purchase. Can you cancel? अभी ये दोनों को merge कर देने का. Can you cancel out anything? Cash. So what are you left with? Furniture to purchase. इसको लिख देने का journal proper में. Is this clear? ये नोट है. ये wrong reverse correct का कोई marks मिलने वाला नहीं. Marks are only for rectified entry. Narration अभी skip करते हैं. Second one पे जाओ. Repairs made were debited to building account. What is the correct entry? Opposite of that. What is the correct entry? Correct entry is repairs to cash. Repairs to cash. समझा सबको? Repairs to cash. 50 rupees. What is the wrong entry? Wrong entry is building to cash. Wrong entry क्या है इसका? Tax account is there. Billing to cash. Which type of error again? Hello. Principal. Principal. क्योंकि repairs का expense का asset हो गया. Rectified is repairs to building. मिला? Hello. How do you do the rectification समझा? Reverse and correct. Reverse and correct. Then an amount of 100 withdrawn by proprietor for personal use has been debited to trade expense account. What is the entry for amount withdrawn by proprietor for personal use? Drawings to cash. Drawings to Cash. cash. बराबर है 100 has been charged to trade expense account. Trade. Wrong entry. Trade expense to cash. Trade expense to cash. समझा? Hello. Reverse, it is cash to trade expense. And cash gets nullified. You are left with drawings to Trade expenses. trade expenses. Is this clear? Hello. Okay. ये मॉड्यूल सब है बाय द वे. Then ये 4 मार्क के लिए ये भी आ सकता है. Then 100 paid for rent debited to landlord's account. By the way, this was also error of principle. Identify करते जाओ. नहीं समझ में आया तो पूछते जाना. What is the entry for paying rent? Correct था rent to cash. Correct था rent to cash. What is the wrong entry? Debited to landlord. So landlord to cash. समझा? Hello. Reverse cash to landlord. And can you cancel out anything? Cash gone. So what is the rectified entry? Rent to landlord. Rent to landlord 100. Again error of principle. So मुझे बताओ guys, in reality, in the books, practically जब आप कर रहे हो books of accounts, have you recorded any correct entry anywhere? No. What have you done in the real books? You have done the wrong part. ये आपने किया है. And you have done the rectified part. That's it. These two entries are actually appearing in the real book. Which ones? The wrong and the rectified. If you merge those wrong and rectified, you should get corrected. That is a way to check whether you have done it right or wrong. सुना क्या बोला? How to verify आपका सही कि गलत? Merge the wrong and the rectified entry. You should get what? Correct entry. Okay? हर एक सिनारियो में आएगा वो. Then salary paid to clerk was debited to his account. What is the correct entry? Salary to cash. What is the wrong entry? Clerk to cash. Reverse it, you get cash to clerk. And can you cancel out anything? Cash. What are you left with? Salary to
clerk. Which type of error? Eh? Sorry? Principal. Salary is an expense. Clerk is a personal account. So maybe a debtor or a creditor. Balance sheet item. This is an error of principal. Paid दिया है. Paid to a clerk duty. Then fourth वाला भी principal. Rent or landlord. Yes. Then 100 received from Shah and Company entered as Shaw and Company. What is the correct entry? Cash to Shah and Company. What is the wrong part? Cash to Shaw and Company. बराबर है? Shah and Company हो गया. Shaw and Company. Shaw and Company to cash. And you cancel out anything? Cash gone. You are left with Shaw to Shah. Shaw to Shah. मुझे बताओ which type of error? बोलो बेटा. Error of commission. Error of commission. Seventh one. Why this is commission? You understood? Shaw. Wrong account. Same personal. Wrong term. 700 paid in cash for typewriter was charged to office expense. What is the correct entry? Typewriter या फिर office equipment to cash. Typewriter या office equipment to cash. What is the wrong part? Office expense to cash. Reverse. Cash to office expense. Can you cancel out anything? Cash. What are you left with? Typewriter या फिर office equipment to office expenses. Office equipment to office expense. समझा? Is this clear? Error of क्या था? It was also error of principal. समझा कि no? Yes, sir. What does that mean? Sum number 22. Please solve fast. Sum number 22. खुद से करो 5 minutes. Sum number 22. Solve fast. 20 seconds. फटाफट 5 minutes. Sum number 22. Wrong reverse correct rectified. खुद से करो. Total हाँ टाइम है. जर्नल का तो हर एक जर्नल का टोटल करना है इसलिए है शेयर टाइम. अच्छा इसका टोटल आया 1665. पूरा एकदम ही सब राइट रहेगा. एकदम परफेक्ट है. एकदम बहुत अच्छा स्कोर है. तब बहुत अच्छा है. प्रेजेंटेशन लास्ट में टोटल करना है. हर एक जर्नल बीओई है आपका. आगे आएंगे टॉपिक. कोई भी जर्नल you have to total it at the end. You have time. तो अंदर कुछ भी गलत रहेगा तो गलत ही है टोटल. doesn't make sense. टाइम है तो करके रखने का लास्ट में. सम नंबर 22 खुद से करो. दिस वन टॉप. 20 seconds. तो मालूम है मैंने एक वीडियो शेयर किया था बिहेवियर एंड बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट वाला. 1 hour 40 minutes का कुछ था. बहुत बड़ा था. ऑनलाइन था. मतलब भेजा था ग्रुप पे. वो जो बंदा है ना वो वीर शाह है. उसको सीखना था. उसके लिए आई टुक दैट सेशन. कोविड उसकी चैनल नहीं है. ही वाज वीर शाह. वीडियो में जो बंदा बैठा है ना दैट इज वीर शाह.
उसके लिए आई टेकन दैट सेशन, तभी कोविड था बीच में 21 में, so that time was in 11th standard. He wanted to learn all stock market का basics. I share that video link, देखने में अच्छा है पूरा. हाँ, बेसिक बिहेवियरल फाइनेंस का है. ध्यान से आराम से पेशेंटली देखना. 1 hour 40 minutes का है वो, बड़ा लेक्चर. You understand the basics. जनरल चार्जेस, जनरल एक्सपेंस, वो से हमारा जनरल एक्सपेंस. जनरल चार्जेस और जनरल एक्सपेंस, साथ में टाइप ऑफ एरर भी आइडेंटिफाई करते रहना. कीप आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ एरर आल्सो. रॉय टू कैश का परचेज टू कैश, डेबिट टू परचेज. इसमें सस्पेंस वाले नहीं है. सस्पेंस कल कराऊंगा, परसों. कल मेरा नहीं है ना, अभी हम फ्राइडे मिलेंगे, सीधा फ्राइडे सस्पेंस. सीए सुबह तो है. सुबह तो आना है सबसे अच्छा. या नहीं, हाँ जनरल चार्जेस टू सेल्स, गोश्त टू सेल्स का जनरल चार्जेस टू सेल्स टू जनरल चार्जेस. फ्राइडे एब्सेंट मत रहना. आई एम गोइंग टू टेक सस्पेंस अकाउंट. स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स ऑफ सस्पेंस. हो गया? करो डिस्कस. क्या लेट है? 10 मिनट है. 5 कहा था तुम्हारा ब्रेक कम हो गया. चलो चेक. पहला वाला रिपेयर्स टू कैश का हो गया. मशीन टू कैश, रिवर्स कैश टू मशीन, रेक्टिफाइड रिपेयर्स टू मशीन. मिला? फर्स्ट वन रिपेयर्स टू मशीन, एरर ऑफ प्रिंसिपल. सेकेंड वन रॉय टू कैश का हो गया. परचेज टू कैश, रिवर्स कैश टू परचेज, रेक्टिफाइड रॉय टू परचेज, एरर ऑफ प्रिंसिपल. परफेक्ट. तीसरा पोस्ट टू सेल का जनरल एक्सपेंस टू सेल, रिवर्स सेल्स टू जनरल एक्सपेंस, रेक्टिफाइड पोस्ट टू जनरल एक्सपेंस, एरर ऑफ प्रिंसिपल. देन कैश टू गोश का कैश टू गोशाल, रिवर्स गोशाल टू कैश, रेक्टिफाइड गोशाल टू गोश, एरर ऑफ कमीशन. एंड ये आपने गलती से बिल्डिंग का इसमें डाला तो करेक्ट एंट्री इज बिल्डिंग टू कैश, रॉन्ग वेजेस टू कैश, रिवर्स कैश टू वेजेस, रेक्टिफाइड बिल्डिंग टू वेजेस, एरर ऑफ. करेक्ट क्या है? करेक्ट लास्ट वाले का करेक्ट. करेक्ट बिल्डिंग टू कैश जो कंस्ट्रक्शन पे हुआ है, गलती से वेजेस में डाला तो वेजेस टू कैश, कैश टू वेजेस, बिल्डिंग टू वेजेस.
Building to wages. Yeah, I'm not checking the books.